Today I am going to introduce a new concept, that is determinant. Determinant. Very important concept chapter है. Let us consider the homogeneous linear equation. Let us consider the homogeneous linear equation, that is a1x plus b1y equal to 0, a2x plus b2y equal to 0. इसको सॉल्व करना है. So there are many ways we can solve this, by limiting, by cross multiplication, by substitution. So there are many methods. We have already studied in class 10. Now solve this one. This equation is multiplied by b2 both sides, and this equation multiplied by b1. इस इक्वेशन को b2 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको b1 से मल्टीप्लाई. फर्स्ट इक्वेशन, ये फर्स्ट इक्वेशन है, दिस वन इज द सेकंड, एंड सबट्रैक्ट सेकंड फ्रॉम फर्स्ट. सबट्रैक्ट सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, वी गेट अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो b1 सॉरी b2 a1x b1y equal to b1 a2x plus b2y, माइनस इक्वल टू 0. इसको b1 b2 से मल्टीप्लाई कर दिए, इसको b1 से माइनस कर दिए, इक्वल टू 0 आ गया. सॉल्व करेंगे, देखोगे ऊपर सॉल्व कर रहे हैं. So a1 b2x plus b1 b2y minus a2 b1x minus b1 b2y equal to 0. ये टर्म कैंसिल हो गया, x कॉमन लोगे, a1 b2 माइनस a2 b1 x equal to 0. Since the product of two terms is 0, so either first will be 0 or second will be 0. So either x equal to 0 or a1 b2 minus a2 b1 equal to 0. मीन्स ये इक्वेशन है a1x plus b1y equal to 0, a2x plus b2y equal to 0. Be satisfied pairs of numbers x and y, one of them at least one of them different from 0. a1x plus b1y equals 0, a2x plus b2y equals 0. Be satisfied pair of numbers x and y. x में satisfy होगा, at least one of them different. नीचे एक दोनों में से एक different होगा. So suppose this one, this expression can be written as a1 b1 a2 b2.
ये जो एक्सप्रेशन है a1 b2 माइनस a2 b1, इस एक्सप्रेशन को हम इस फॉर्म में भी ले सकते हैं. सो दिस इज नथिंग, इट इज द डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2 by 2. ये कुछ नहीं, ये जो एक्सप्रेशन वैल्यू है, दिस एक्सप्रेशन कैन आल्सो बी रिटन इन दिस फॉर्म. सो दिस इज नथिंग, दिस इज द डिटर्मिनेंट of order 2 by 2. ये कुछ ही है, डिटरमिनेंट 2 by 2 order, because it consists 2 rows and 2 columns. Let us take another example. एक दूसरा एग्जाम्पल दिखा ले रहे हैं. सपोज a1x plus b1y plus c1z equal to 0, a2x plus b2y plus c2z equal to 0, a3x b3y plus c3z equal to 0. If you solve these three equations, अगर ये तीनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे by using x, y and z, we get a expression. अगर इसको हम एलिमिनेट करके अगर सॉल्व करेंगे, एक एक्सप्रेशन मिलेगा. क्या मिलेगा कि a1 b2 c3 माइनस b3 c2 माइनस b1 a2 c3 माइनस a3 c2 प्लस c1 a2 b3 माइनस b2 a3. ये लीनियर क्वेश्चन 3 वेरिएबल्स है. इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, यूनिट x y का एलिमिनेट करेंगे, तो एक एक्सप्रेशन का दिस एक्सप्रेशन. सो इफ यू दिस एक्सप्रेशन कैन आल्सो बी रिटन एज लाइक दिस: a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3. So this is nothing, it is the determinant of order 3. ये जो है ये डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3 by 3 है. ये इस एक्सप्रेशन की वैल्यू को, इस जो पूरे एक्सप्रेशन है, दिस कैन बी आल्सो रिटन एज इन दिस फॉर्म. ये डिटरमिनेंट ऑफ 3 by 3 बिकॉज़ इट कंसिस्ट 3 rows and 3 columns. So now you give a definition of the determinant. What is determinant? अब तू बता रहे डिटरमिनेंट क्या है. डिटरमिनेंट क्या है, इसका डेफिनेशन देखो. डिटरमिनेंट to every square matrix A equal to Aij of order n, to every square matrix A equal to Aij of order n, we can associate a number is known as determinant of square matrix A. Correct. To every square matrix A equal to Aij of order n, we can associate a number. हर स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए एक नंबर एसोसिएट करेंगे. जो नंबर एसोसिएट ऑफ दिस नंबर इज द डिटरमिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स A. या दूसरे तरह से कह सकते हैं कि डिटरमिनेंट इज आल्सो ए फंक्शन. सपोज लेट x be the set of all
square matrix. Let X be the set of all square matrix and Y be the set of real numbers. X be the set of square matrix and Y set of real number. Then f is function from X to Y. Define and f a equal to m, where a belongs to X and m belongs to Y. X is the set of all square matrix and Y is the set of real number. Then f is function of X to Y defined by f a equal to m, where a belongs to X and m belongs to m. Then f a, the f a is nothing. F a is determinant of square मैट्रिक्स ए। ये जो एफ ए है ये क्या है? एफ ए यही डिटर्मिनेंट है। तो दो डेफिनेशन होगा डिटर्मिनेंट का, या तो ऐसे समझते या इसको फंक्शन के रूप में समझ सकते हैं। नाउ determinant of square matrix, determinant of square matrix A of order 1 by 1. Let A equal to A11, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है 1 ऑर्डर। तो डिटर्मिनेंट कैन बी रिटन एज 2 वर्टिकल, ये डिटर्मिनेंट सिंबल है, 2 वर्टिकल, ये मॉडुलस नहीं है ना ऑप्शन वैल्यू, दिस इज द डिटर्मिनेंट। सो दिस कैन बी डिटर्मिनेंट ऑफ A11, इट्स वैल्यू इज A11, इसकी वैल्यू A11। तो डिटर्मिनेंट अगर 1 ऑर्डर का है तो अगर मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स अगर 1 ऑर्डर का है, A इक्वल टू AIG है, इसका करस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट ये हो गया, इसकी वैल्यू A11 ही होगा। फिर है डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स A ऑफ ऑर्डर 2 by 2। डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स A of order 2 by 2। So A equal to, या let A equal to A11, A12, A21, A22। देखो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये 2 ऑर्डर का है। इसका डिटर्मिनेंट दिया जाएगा, दिस कैन बी रिटन A11, A12, A21, A22। इसकी वैल्यू कैसे फाइंड होगी? इसको इसको मल्टीप्लाई कर दें, जैसे भी डिस्टेंस हो गया माइनस इसको करेंगे, दैट इज A11 into A22 माइनस A12 into A21। अगर 1 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है तो इसकी ये वैल्यू आएगी। अगर 2 ऑर्डर का है तो डिटर्मिनेंट ऑर्डर इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस देंगे, फिर इसको लिखेंगे ये है डिटर्मिनेंट ऑर्डर 2 का। इसी तरह से अगर डिटर्मिनेंट ऑर्डर 3 ऑर्डर का है, डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स A of order 3 by 3, 3 by 3। यही हमारे कोर्स में 1 ऑर्डर का, 2 ऑर्डर का, 3 ऑर्डर का। तो A इक्वल टू A11, A12, A13, A21, A22,
A23, A31, A32, A33। ये स्क्वायर मैट्रिक्स है 3 ऑर्डर। इसका करस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट क्या होगा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए, दिस कैन बी रिटन एज लाइक A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। वैल्यू ये डिटरमाइंड होगा 3 ऑर्डर। इससे वैल्यू कैसे निकालेंगे? वी कैन एक्सपेंड अराउंड द फर्स्ट रो। ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, ये थर्ड रो है, ये फर्स्ट कॉलम है, सेकंड कॉलम है। तो किसी के अकॉर्डिंग इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। हम एक्सपेंड कर रहे हैं एक्सपेंडिंग अराउंड R1, एक्सपेंडिंग अलोंग R1, यानी फर्स्ट को अलोंग एक्सपेंड कर रहे हैं। एक्सपेंडिंग कैसे होगा कि प्रोडक्ट ऑफ दिस दैट इज A11, ये A1 होगा, ये जिस रो में और जिस कॉलम में उसको डिलीट कर देंगे और जो बचेगा वो डिटरमिनेंट 2 ऑर्डर का आ जाएगा। ये A11 है, ये रो एवोल्यूशन हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, ये कॉलम डिलीट हो जाएगा, ये बचेगा दैट इज A22, A23, A32, A33। फिर इसके बाद माइनस आएगा। माइनस क्यों होगा? इसका रूल यह देखोगे कि Aij इक्वल माइनस 1 पावर I प्लस j। कब माइनस होगा प्लस होगा? इसका दिया हुआ A11 का आगे प्लस क्यों हो गया? तो A यहां से A11 है, तो माइनस 1 पावर 1 प्लस 1, तो माइनस 1 पावर 2 दैट इज 1 आ गया। सही, दैट इज प्लस 1 आएगा तो प्लस आ गया, तो प्लस आ गया, इसलिए यहां प्लस हो गया। यहां माइनस क्यों आएगा? ये एलिमेंट है A12, इसमें अगर पावर पुट करेंगे A12 तो माइनस 1 पावर 1 प्लस 2, तो माइनस 1 पावर 3 दैट इज माइनस 1। मीन्स इसकी जो सफिक्स है, जो सफिक्स लेंगे, अगर दोनों का सम इवन होगा तो प्लस रहेगा, और सफिक्स का दोनों का सम अगर ऑड होगा तो आगे माइनस रहेगा। तो माइनस A12 हो गया। ये सेकंड फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में है, तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम डिलीट हो गया, जो बच गया क्या बचा यहां देखोगे तो A21, A23, A31, A33, फिर प्लस तीसरा एलिमेंट है A13, 1 प्लस 3 4, यहां से प्लस रहेगा क्योंकि इवन नंबर। A13 कहां है? फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो फर्स्ट रो डिलीट हो जाएगा, थर्ड कॉलम डिलीट हो जाएगा, ये टर्म बचेगा दैट इज A21, A22, A31, A32। ये एक्सपेंशन का रूल है, किसी तरह से इसको एक्सपेंड करते हैं अलोंग द फर्स्ट रो या फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, किसी से कर सकते हैं। इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी? A11 इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, देखोगे A22 इंटू A33 माइनस A23 इंटू A32, इसको मल्टीप्लाई करके माइनस इसको लिखेंगे, फिर क्या होगा A12, इसको मल्टीप्लाई करेंगे A21, A33 माइनस A31, A23 प्लस A13, इसमें इसको मल्टीप्लाई करें, माइनस मल्टीप्लाई करें, ये आंसर है इसमें। तो डिटरमिनेंट ऑफ जो 3 ऑर्डर का है उसको इस तरह से इसको एक्सपेंड करते हैं। इसका एक एग्जांपल दे रहे हैं सब लोग। एक पर्टिकुलर एग्जांपल देखोगे, इवेल्युएट डिटरमिनेंट 2 3 1 2 1 या 4 1 3 2 1 4 सपोज ये डिटरमिनेंट। इसका एक्सपेंड करना है, 3 ऑर्डर का है, 3/3 का एक्सपेंड करना है, जिसको बताया कि मेथड से क्या होगा। यहां देखोगे एक्सपेंडिंग अराउंड द फर्स्ट रो के अराउंड एक्सपेंड करना है, तो पहले यहां 2 लेंगे,
2 लेंगे तो यहाँ से 2 होगा, ये फर्स्ट रो डिलीट हो जाएगा और फर्स्ट कॉलम डिलीट हो जाएगा, ये टर्म बचेगा नहीं 1 3 1 4। फिर माइनस रहेगा, सेकंड एलिमेंट है, सेकंड एलिमेंट ये जो फर्स्ट सेकंड एलिमेंट है, सेकंड फर्स्ट रो सेकंड कॉलम डिलीट हो जाएगा, ये रहेगा 4 3 2 4 प्लस फिर ये एलिमेंट 1, ये फर्स्ट रो थर्ड कॉलम है, ये फर्स्ट रो डिलीट हो गया, थर्ड कॉलम डिलीट हो गया, ये बचेगा 4 1 2 1। सॉल्व करेंगे 2, यहां मल्टीप्लाई करेंगे 4 माइनस 3 माइनस ये करेंगे 16 माइनस 6 प्लस 1 इंटू इसको इंटू करेंगे 4 माइनस 2 दैट 2 इंटू 1 माइनस 10 प्लस 2 दैट इज 4 माइनस 10 दैट इज माइनस, इसकी वैल्यू जो होगी माइनस 6 है। तो माइनस प्लस का रूल का ये फॉर्मूला दिया है हम लोगों के, अगर फर्स्ट प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, अगर फर्स्ट रो के अलाउंग एक्सपेंड करेंगे ये सिंबल रहेगा प्लस माइनस प्लस, देखो यहां से प्लस प्लस माइनस प्लस, सेकंड रो के अलाउंग एक्सपेंड करेंगे माइनस प्लस माइनस। रूल वही है, रूल का ये रखना है कि -1 पावर ए आई जे, देखो -1 पावर आई प्लस जे, -1 पावर किसी भी रूप करेंगे तो माइनस प्लस, अगर सफिक्स का सम अगर इवन होगा तो प्लस रहेगा, ऑड होगा तो माइनस हो जाएगा। तो डिटरमिनेंट का यूज में, डिटरमिनेंट का क्या यूज है, डिटरमिनेंट का यूज जो है वो मैट्रिक्स में स्क्वायर मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड करने के लिए और लीनियर इक्वेशन 3 वेरिएबल्स और 2 वेरिएबल जो दिया होगा उसका सॉल्यूशन फाइंड करने का यूज होता है। डिटरमिनेंट का यूज है जो इक्वेशन जैसे सपोज करते हैं ऐसे दिया रहेगा कि 2x प्लस 3y इक्वल टू 6, 4x माइनस 4y इक्वल टू 9, इसको सॉल्व करना है। तो दिस इक्वेशन कैन बी सॉल्व विद द हेल्प ऑफ डिटरमिनेंट, या ऐसे सॉल्व कर सकते हैं कि x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल टू 9, 2x प्लस 4y प्लस 5z इक्वल टू 10, x प्लस y प्लस z इक्वल टू 3। ये लीनियर इक्वेशन 3 वेरिएबल है। दिस एक्सप्रेशन कैन बी आल्सो, दिस लीनियर इक्वेशन इसको सॉल्व करने का सॉल्व है जो डिटरमिनेंट के हेल्प से भी इसको सॉल्व करते हैं, ये भी सॉल्व करता है, इसका डिटरमिनेंट का ये यूज है। अब देखो दो छोटे क्वेश्चन देखोगे, एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इवैल्यूएट द फॉलोइंग, इसको इवैल्यूएट करना है। यानी पार्ट फर्स्ट, साइन 30 डिग्री कॉस 30 डिग्री, साइन 60 डिग्री कॉस 60 डिग्री, ये दिया होगा। ये डिटरमिनेंट 2/2 इसको वैल्यू करना है, इसका 2/2 का है, इससे मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री माइनस साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री, या इसके डायरेक्ट वैल्यू पूरे साइन 30 वैल्यू 1/2 होगा, कॉस 60 का वैल्यू 1/2 पुट करके भी आंसर निकाल सकते हैं, और नहीं तो इसको वैल्यू स्किप करने के लिए साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी हो जाएगा साइन 30 डिग्री माइनस 60 डिग्री, दैट इज साइन माइनस 30 डिग्री, तो माइनस साइन 30 डिग्री दैट इज माइनस 1/2, इसे भी निकाल सकते हैं या डायरेक्ट वैल्यू पुट कर भी निकाल सकते हैं, इसको एक मेथड ये भी है। दूसरा क्वेश्चन देखोगे, अगर ऐसा रहेगा सेकंड पार्ट का, सब 2 ऑर्डर का ही दे रहे हैं, 3 ऑर्डर का नेक्स्ट बताएंगे। सेकंड क्वेश्चन है इसका सेकंड पार्ट, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, एक्स माइनस 1, एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 1, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो यहां से मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस 1
एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1। इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं या इसका फॉर्मूला पुट करना है। ये हो गया एक्स क्यूब माइनस 1 का फॉर्मूला होता है और ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 का फॉर्मूला। सॉल्व करेंगे एक्स क्यूब प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। इस तरह से सॉल्व करें। अब जो बच एक्सरसाइज 4.1 का जो रिमेनिंग क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर 4 सभी होमवर्क हो जाएगा और सब इसका एक ही तरह से सॉल्व होगा। सॉल्व करना फिर नेक्स्ट डे सॉल्व करेंगे। थैंक यू।